Good morning, students. Today we will proceed further, and our next topic is what do you understand by the statement a constitution sometimes prevents us from letting our certain decisions backed by our ideas and thinking about our community and country from having adverse effect on the principle on which our country works and that are meant for larger good of our country. So they are telling that sometimes there is something limitations to our constitution, not in the limitation in the constitution but limitations in our thinking and thought that prevent us from doing many things which may be against constitution. मतलब a constitution sometimes prevent us from letting our certain decisions backed by our ideas. कभी कभी हमारा जो आइडियाज़ और थिंकिंग है उसको कुछ चीज़ों जो हम बैक करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी तरह से रोकता है, ऑब्जेक्ट करता है. अबाउट अवर कम्युनिटी एंड कंट्री, जो हम सोचते हैं अपने कम्युनिटी, अपनी जाति और अपने देश के बारे में. फ्रॉम हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑन विच, जिससे हमारे प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है उस पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, नेगेटिव एडवर्स पड़ता है. इसलिए और अच्छे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी उस हमारे आइडियाज़, हमारे विचारों को रोकता है. Case study. The process of making of the Indian Constitution began many decades before India got independence. The Constitution of India was drafted by Motilal Nehru in 1928. तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रक्रिया हुई, शुरू हुई, ये बहुत ही पहले हुई. एंड इट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू, रिस्पेक्टेड फादर ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू. The legislatures that the British had introduced were weak and voting rights were not given to everyone. पहले जो नियम कानून थे उसमें राइट्स जो थे काफ़ी कच्चे थे, बहुत ही वीक थे, ब्लिक इन नेचर थे और सबको वोटिंग राइट, सबको वोट करने का अधिकार नहीं था. The Indian lawmakers had learned from the experience during the colonial rule and utilized all of it while writing the constitution. Many of the institutional details and procedures were borrowed from the colonial laws like Government of India Act 1935. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ आई और काफ़ी कानून जो कॉलोनियल कानून थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो था उसको एज इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, जैसे कि द एक्ट ऑफ 1935. The Assembly made sure that proper modifications were done suiting the interest of our country while taking inspiration from other constitutions. So they decided that there should be proper modification which were best for our country, and they also take others' constitution in their knowledge. The drafting of Indian Constitution was done by the Constituent Assembly. Indian Constituent Assembly was convened in December 1946. तो कब ये सब शुरू हुआ, ड्राफ्टिंग कब हुआ, वो ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और ये बनने का साल 1946 था. 1946 वाज द ईयर. द मेंबर ऑफ दिस असेंबली वे ओनली इंडियंस, और इसमें मेंबर कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं थे, सी वॉज केवल भारतीय थे. द असेंबली स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता मीन्स जो हेड होते, जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके चेयरमैन कौन था ओवरऑल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Our constitution was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950, which we commemorate as our Republic Day. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा जो कानून है, जो नियम है, वो नियमावली कानून कब किस दिन से लागू किया गया, 26 जनवरी 1950. That's why we celebrate 26 January from 1950 that it is our Republic Day. Indian Constitution. How does the Constitution define the nature of Indian democracy? कैसे करके हमारे डेमोक्रेसी का जो नेचर है उसको कैसे डिफाइन करता है. इंडिया इज़ अ डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री. थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कम्युनिटीज, रिलीजन एंड कल्चर्स वोट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट गवर्न्स देम. तो इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स, बहुत ही अलग अलग मतों के, विभिन्न मतों का देश है जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ है, धार्मिक लोग हैं और अलग अलग कल्चर्स है. सब एक साथ प्रिवेल करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, तो सबको वोट का, बराबर वोट का अधिकार है.
इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय द पीपल इलेक्टेड बाय इंडियन सिटीजन दैट रिप्रेजेंट अ कॉमन फीलिंग ऑफ यूनिटी। तो what is the common feeling of what is the feeling among Indian citizens? That is the common feeling of unity, एकता, सब एक है। टेकिंग अलॉन्ग वेरिड कल्चर्स, रिलीजन एंड कम्युनिटीज अपार्ट। तो अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग धर्म और अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलावा भी सब में कॉमन क्या है? उनकी एकता। दीज आर द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही मेन वैल्यूज़ है और सिद्धांत है, नियम और सिद्धांत है जो कि हमारे भारतीय संविधान में हम लोग बार बार रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं। थैंक यू।